اگر روڈ کنیکٹیوٹی اچھی رہے گی, اگر ٹرین کنیکٹیوٹی اچھی رہے گی, ٹورزم کا اتنا بڑا ہو جائے گا جس میں مجھے لگتا ہے ہماری عقل خود پریشان ہو جائے گی. بھائی دیکھیے, جس ماں کے 7 بچے ہوتے ہیں اگر اس ماں کو 7 بچے نہ پوچھیں تو وہ در در ہوتی ہے. گورنمنٹ تو پیسے دے رہی ہے لیکن ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ یوٹیلائز کرنے کو تیار نہیں. سینڈ آتی ہے وہ بھی آتی ہے, پہلگام سے وہ لیڈر نکلتی ہے وہ بھی ادھر ہمارے ولر میں آتی ہے, تو ولر کا بچنا میرے انداز میں, میرے خیال میں مشکل ہے. آداب ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام روبرو اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ یاسمین منظور. ناظرین, آج ہم آئے ہیں ایک نیا شمارہ لے کر ضلع بارہمولہ میں. کریں گے یہاں کے لوگوں سے بات اور جانیں گے کیا کچھ کہنا ہے ان کا یہاں کی ترقی کو لے کر, یہاں کے ایجوکیشن سیکٹر کو لے کر, یہاں کے ویمن امپاورمنٹ کو لے کر. تو آئیے اپنے سوالاتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے. میرا پہلا سوال ریلوے کنیکٹیوٹی کو لے کر, آل ویدر ریلوے کنیکٹیوٹی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک ہمارے اس نارتھ کشمیر کی بات ہے, نارتھ کشمیر تک تو ابھی ہم نے دیکھا کہ صرف بارہمولہ تک تو ہماری ریل آ چکی ہے, اور ریل کے آنے سے کافی زیادہ پربھاؤ پڑا ہے ہمارے بزنس میں ابھی تک. لیکن چونکہ یہ جو ہم ٹیل اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو بھی ہمارا, اب جو ہم امپورٹ ہی سارا کچھ مٹیریل کرتے ہیں, جو بھی باہر سے جو بھی مال آتا ہے, لیکن ابھی یہ انڈیا کے ساتھ پورا کنیکٹ نہیں ہو پایا ہے. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی ہمارا جو ریلوے کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ صرف بانیال تک ہے, اور وہاں پہ تو کوئی بھی ایسا کوئی جو ہماری جہاں پہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں سے تو آتی نہیں ہے, وہ ہندوستان کے یا انڈیا کے دور دراز علاقوں سے آتی ہے یا ایٹ لیسٹ جموں سے آ جاتی ہے. جموں کے ساتھ جب یہ پوری طرح سے کنیکٹ ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا بزنس کا, کیونکہ ہمارا سب سے پہلے جو ہمارا جو امپورٹ مٹیریل ہوگا اس پہ فریٹ کم پڑنے کی وجہ سے وہ ہم اس میں بینگ اے بزنس مین میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس میں شاید فریٹ کم پڑے گا, اور ہمارا جو یہاں پہ کاسٹ پڑے گی, ہماری جو لینڈنگ کاسٹ ہوگی وہ کم ہوگی, اور اس کی وجہ سے شاید ہم سستا بیچ بھی پائیں گے, اور اس سے عام جنتا جو ہے یہاں پہ عام جنتا کو وہ چیزیں شاید سستے داموں پہ بھی مل سکتی ہیں. سب سے پہلی بات ہے جو ریلوے کی بات آ رہی ہے, جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن چل رہا ہے کشمیر ویلی پہ اور اس کو جوڑنا ہے پورے ہندوستان کے ساتھ, تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں جو آج کی موجودہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ سینٹر میں ہے چاہے اسٹیٹ میں ہے, کہ جو ہماری ریل بارہمولہ سے بانیال تک جاتی ہے اس کو ترنت ٹھیک کیا جائے جموں تک, کیونکہ ہمیں جب روڈ کی بلاکیج آ جاتی ہے تو ہمارے بچوں کو, جو طالب علم ہمارے جو باہر پڑھتے ہیں ان کو بہت مشکل آتی ہے. اس میں 2 مشکلیں ہیں, ایک تو ہمارا بچوں کا فائنینشیل لاس بڑا ہوتا ہے, ان کو کرایہ بہت دینا پڑتا ہے, جب وہ سومو میں یا ٹیکسی میں جاتے ہیں تو کافی کرایہ دینا پڑتا ہے. اگر ہماری ریلوے جموں تک امیجیٹ سٹارٹ ہو جائے تو ہمیں بہت آسانی سے ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں, اور جلدی ہر جگہ یونیورسٹی میں یا دلی میں یا بنگلور میں جلدی کنیکٹیوٹی پہنچ جاتے ہیں. اگر ہم یہاں سے نکلتے ہیں بارہمولہ سے جموں کے لیے, اگر روڈ بلاک ہو جائے تو 3 دن 4 دن 5 دن بھی لگ سکتے ہیں. اگر ریل کی کنیکٹیوٹی فاسٹ ہو جائے تو ہم کچھ گھنٹوں میں جموں میں پہنچ کے, اگر آپ پورے ہندوستان میں جہاں پر پہنچ رہے ہیں پہنچ سکتے ہیں. میں اگر اپنے سوپور جو میرا یہ ایپل ٹاؤن سوپور ہے اس کی اگر میں بات کروں گا, کیا آپ میں سے کوئی سوپور ریلوے اسٹیشن گیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے آنریبل منسٹر آف ریلوے ہے, پیچھے بھی میں نے اس کو ایک بار میل کیا تھا اور ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ذرا دھیان دیجئے جو ہمارا سوپور ریلوے اسٹیشن آج کی ڈیٹ میں ہے, یہ ہماری مجبوری ایک ہے کہ ہم آج پچھلے 3-4 سال میں سے ہماری اکنامک بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, یہ مجبوری کی وجہ سے ہم ریلوے میں جاتے ہیں, ورنہ جو ریلوے اسٹیشن کا حال انہوں نے بنایا ہے وہ تو بہت اتنا بد سے بدتر حال بنا ہے کہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں بھی سوپور ریلوے اسٹیشن میں جاؤ گے آپ کو پیسنجر کو بیٹھنے کے لیے کوئی سیٹ اچھی نہیں ملے گی. اگر آج کی ڈیٹ میں آج واش روم یوز کرو گے, واش روم نام کی تو کوئی چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں. جو سوپور ریلوے اسٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے وہاں پہ لوگ 2 منٹ پہلے پہنچتے ہیں اس غرض سے کہ ٹرین آئے, ہم ٹرین میں چڑھے اور نکلے. ہمارے یہاں سے جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات ہم کریں, یہاں پہ ہمارا ایک
जैसे कहते हैं कि फ्रूट मंडी है हमारी यहाँ पे, एशिया की सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है। तो यहाँ का जो मेवा है तो ट्रेन के जरिए ये बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही तुरंत फास्ट इंडिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, जो कि आज की डेट में अगर हम ट्रक्स वगैरह में लाद देते हैं ये तो काफ़ी समय इसमें निकल जाता है, और हमारा कुछ जो मटेरियल है, जो हमारे सेब वगैरह है या यहाँ से जो जितने भी फ्रूट्स यहाँ पे बनते हैं, उगते हैं, तो उनके पेरिश होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और जिसका रिजल्ट ये रहता है कि उसके दाम भी काफ़ी कम आ जाते हैं। लेकिन ट्रेन कनेक्टिविटी से यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से बड़ी फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो इंडिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, और फ्रेश फ्रूट का मज़ा वहाँ से भी ले सकते हैं लोग, और उसका शायद दाम भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। देखिए, सफ़र के जो मसला है ये घोड़े टांगे से लेकर जहाज़ तक सफ़र किया गया आज तक, और किया जा रहा भी है, लेकिन हर सफ़र की अपना अपना टेस्ट है। जैसे पहले बैलगाड़ी से शुरू हुआ, घोड़े टांगे से शुरू हुआ, गाड़ी से शुरू हुआ, जहाज़ पर चला गया, और रेलवे भी आ गई, जबकि रेलवे कोयले पर चलती थी, आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब यह है कि रेलवे का जो सफ़र है, इस सफ़र को रेलवे को हम कह सकते हैं मदर ऑफ ट्रैवल। बड़े आराम से, इजी, हर जगह का नज़ारा लेते हुए, टेस्ट लेते हुए हम जाए मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमने जाना होगा। रहा सवाल इसकी मेंटेनेंस का, भाई देखिए, जिस माँ के 7 बच्चे होते हैं, अगर उस माँ को 7 बच्चे ना पूछें तो वो दर होती है। इस तरह ये मदर ऑफ ट्रैवल जो है, ये ट्रेन, इसकी बेकदरी अगर हम खुद करेंगे, इसके शीशे तोड़ेंगे, इसके दरवाजे तोड़ेंगे, इसकी रिपेयरिंग कौन करेगा? ये बात हम गवर्नमेंट को कैसे ठोसेंगे? जब एक बेटा 7 बेटों की मां है, उसको वो कपड़ा ना दे दें, उसको खाना ना दे दें, उसकी वो खिदमत ना करें, तो वो मां का बोलेगी कि ये मेरे बेटे हैं? वो तो लावारिस बोलेगी अपने आप को। इस तरह से हम इस रेलवे को, इस ट्रेन को लावारिस ना करें, इसकी कदर करें हम। प्यासो रहो न दश्त में, प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़िर, प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मी पे पाँव के पानी निकल आए। मैं पहले ही वेलकम करता हूँ रूबरू टीम को दिल की अमीर गहराइयों से यहाँ, एंड मैं दिल की अमीर गहराइयों से इनके जज्बों को सलाम करता हूँ, जो ये वक्त फ़क्तन ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर हम जैसे आम लोगों की जो मैसेज है वो आला हुकाम तक पहुँच के थोड़ा सा रेडरेसल हमें मिलता है। देखिए, देयर इज ए quote in English, we say better roads lead to a better economy. So this is the quote which was the need of an hour as of now. I thought कि ना कोई बोलेगा ही इस बारे में। Better roads, better economy, ये मुझे नहीं पता किसने बोला है, I don't actually know, but ये एक टाइम टेस्टेड और ट्रस्टेड कोट है। जितना भी रोड अच्छे होंगे, जितनी भी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो ज़्यादा अच्छा इंशाल्लाह ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाता है उस जगह का। जहाँ से अगर हम ट्रेन की बात करें, जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट होगी, तो उसमें हमारे एजुकेशन सेक्टर का भी बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट उसमें भी पड़ेगा। बीइंग ए मुस्लिम वी बिलीव इन दिस थिंग कि अगर, ये तो खैर सऊदी अरबिया से कहा गया था कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, बिकॉज दैट इज अ प्रीटी लॉन्ग डिस्टेंस, सऊदी अरबिया और चाइना का बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो बीइंग ए मुस्लिम वी बिलीव दिस थिंग कि हमसे ये कहा भी गया है कि अगर चीन तक भी जाना पड़े तो तालीम हासिल करने के लिए आप चीन भी जाइए। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें अभी भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी जो फास्टेस्ट जो ट्रैवलिंग का माध्यम है दैट इज़ बाय एयर, और मैक्सिमम लोग एफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई एफोर्ड कर पाएगा, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। लेकिन ट्रेन जो है एक वाया मीडिया है, जो ट्रांसपोर्ट, जो बसेस वगैरह और जहाज के बीच का एक रास्ता है ट्रेन। इसमें आपका किराया भी सस्ता पड़ेगा और फास्टेस्ट भी है। फास्टेस्ट मीन्स कि मतलब बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है उस ट्रेन से, और इस हिसाब से जो यहाँ पे एजुकेशन का भी, तो बच्चों के आने जाने के लिए भी सहूलियत रहेगी ट्रेन कनेक्टिविटी से। हाँ, पहले तो ये जो ट्रेन का आपने कहा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
और मेरे ख्याल में दुनिया का अनोखा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके रास्ते में ऐसा पुल भी आता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम है जो हमारे लिए हुकूमत ने शुरू किया है। और मेरे ख्याल में जब ये मुकम्मल हो जाएगा, जिस तरह इंसान की रगों में खून दौड़ता है, बराबर इसी तरह हमारी मैशियत अच्छी होती रहेगी और हमारा एजुकेशन और हमारे मतलब जितने भी कारोबार है यहाँ, उन पर एक बेहतरीन असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द तैयार हो जाए ताकि यहाँ के लोग महसूस करें और खुश हो जाए। साथ ही साथ हम मौजूदा हुकूमत को एक सराहना करते हैं कि हाल ही में जो उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन एक हमारी स्टार्ट की, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मौजूदा हुकूमत के। और साथ ही साथ जैसे कि मेरे भाइयों ने फरमाया कि अब जो हमारे यहाँ से बारामूला से ताबाले दुनिया के किसी भी कोने में या हमारे हिंदुस्तान में जहां पर भी ट्रेनें जाती है, हम अभी उसके साथ मिले हुए नहीं है। वो प्रोजेक्ट तो हमें जो सुनने में आया है 2025 में वो कंप्लीट होगा, लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर उस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए और कम से कम 4 महीने या 5 महीने उससे कम हो जाएगी, तो वो अगर कुछ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें स्टेट गवर्नमेंट यूएटी को कुछ गिफ्ट देना चाहती है, उस हिसाब से हम ये समझेंगे कि हमारे एक आम इंसान को फायदा हुआ। बिजनेस जो हमारी, अगर हम यहाँ से कोई माल बेचते हैं, चाहे डालिशन बेचें, चाहे बगु गोशा बेचें, चाहे कोई भी बेचें, अगर हम बगु गोशे की मिसाल ले लें, हम ट्रक में बगु गोशा लोड किया और दिल्ली तक पहुंचने पे 3 दिन लगे, तो जितना भी बगु गोशा है वो रास्ते में ही खराब हो जाता है, क्योंकि बगु गोशा एक नाजुक फल है जो इमीडिएटली दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता पहुंच जाए। तो रेलवे से हमारा, अगर आज हम यहाँ पर रेलवे में ये बगु गोशा लोड करेंगे, सुबह करेंगे तो शाम को दिल्ली पहुंच जाएगा। ये हम गवर्नमेंट से भी और जो भी इनके साथ वाबस्ता है रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली ये जो कनेक्टिविटी है रेल की, ये फास्ट ट्रैक में लाकर दिल्ली के साथ, जम्मू के साथ कनेक्टिविटी कर जाए, जो हम यहाँ पर या हम लोग रहते हैं हमें फायदा हो जाए। अभी जो सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो बिल्कुल इसको स्ट्रेट ला रहे हैं, कुपवाड़ा तक ले जा रहे हैं इनिशियल स्टेज में। लेकिन हमारा ये हुकाम से रिक्वेस्ट रहेगी, ये तो खैर 2 साल पहले जब भी ये बात छिड़ी थी कि इस रेलवे ट्रैक की जब सर्वे हो रहा था, तो उस समय के यहाँ पे जो फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट थे, मैंने उनसे भी बात करी थी इस बारे में, और उन्हें वो बात उस वक्त के गवर्नर शायद सत्यपाल मलिक जी से पहले कोई थे गवर्नर, तो उनसे बात हुई थी। एक्चुअली जो अभी जो ट्रैक बन रहा है रेलवे ट्रैक कुपवाड़ा तक, उसमें उन्होंने सोपोर मंडी को थोड़ा बाईपास करा हुआ, वो सोपोर मंडी को छू के नहीं गुजरता, जिसकी वजह से काफी खदशात का हमें यहाँ के मतलब जो फ्रूट मंडी के जो लोग हैं उनको काफी खदशात है कि हमें फ्रूट मंडी से उस रेलवे स्टेशन तक माल ढोने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए इसको कुछ इस एंगल से डिजाइन किया जाए ताकि कनेक्टिविटी रहे फ्रूट मंडी तक, जहां से वहां से माल भर के ना भारत के बाकी शहरों में भेज दिया जाए, और उस ट्रैक को उस जुमरे में लाने की जरूरत है। और ये देखें, बिजनेस का मामला आया आपके सामने, बड़ी रहमत है। आपका जो एक पेटी सेब की यहां 10 दिन में बम्बे पहुंचेगी, और आपका इसका किराया जो है वो 150 रुपया 200 रुपया पेटी का लगता है, 250 रुपया पेटी पर लगता है। वहां जाकर आपकी वो मेवे की पेटी 800 रुपये या 700 रुपये में बिकती है। आज तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन इससे पहले अगर वो 1000 रुपये में बिकती थी, लेकिन पहले ये जो खर्चा था ये काटा जाता था। और फिर अभी बात चली नाशपाती की, बगु गोशे की। ये चेरी का फसल और बगु गोशे का फसल हमारा बड़ा नाजुक फसल है, इसको टाइम चाहिए कम, ये जितनी जल्दी हो सके जाए मकाम पर पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का जो रास्ता है नेशनल हाईवे, इससे हमें बड़ी दिक्कत दी, तकलीफ दी, क्योंकि ये अमूमन हमें बंद रहता है, अमूमन बंद हो जाता है। ये नहीं पता है हमारा ट्रक कितने दिन जाकर फंस जाएगा रास्ते में, नेशनल हाईवे में। कहीं पसियां जाती हैं, कहीं कुछ जाता है। अभी बच्चे ने बोला कि यहाँ नहीं, इसको जी रिपेयर करना चाहिए। भाई इसकी रिपेयर करते करते भी रिपेयर नहीं होता है, फिर भी 8 दिन खा जाता है। वो 8 दिन हमारा नाशपाती बगु गोशा कहाँ जाएगा, वो चेरी कहाँ जाएगा, वो तो फेंकना है उदी दरिया पे। इसलिए
जो रेलवे का सिस्टम है इसको खतरा है, ये सीधी अपनी रफ्तार में पहुंचेगी और आपका जो माल है जाए मकाम पर जाकर पहुंचाएगी और आपकी बिजनेस जो है दिन ब दिन तरक्की करेगी। देखिए, अगर मैं रेलवे की बात करूं, क्योंकि बात इसके मुतालिक हो रही है, ये बात भी हमारे लिए हम याद रखें कि दुनिया में जितने भी 5 ब्रिड्ज है जहाँ पे बहुत खतरा ज़्यादा रहता है, हमारा जो ये ब्रिज बनता है अजूबा है, लेकिन उन जो 5 ब्रिड्ज है मतलब जहाँ पे खतरा ज़्यादा है ये उनमें नहीं आता। ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये सेफ है। अगर इस पे कभी मतलब अगर कोई बम भी इस पे गिरेगा तो ये उससे भी नुकसान इस पे नहीं होगा। तो ये भी एक अहम चीज़ है कि बिल्कुल 100 साल इसकी उम्र भी का ब्रिज है। और आगे आगे आप देख लीजिए कि इसकी जो रेलवे की जो बोगियां हैं, यहाँ पे जो काम इसका हो रहा है, आराम भी है। अभी आराम से बाय बस जाएं आप या सोमो में जाएं, वहाँ पे तो कई घंटों में कभी हम जाम में फंसते हैं, लेकिन इसमें बैठे आराम से पहुँचते हैं। अच्छा काम हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ज़्यादा ध्यान दें। जिस तरह से बाकी शहरों में काम शद्दोमत से जारी है, यहाँ भी उसी तरह से तेज़ी से शद्दोमत से काम। क्या आप ये मानते हैं कि ऑल वेदर रेलवे कनेक्टिविटी से जो कश्मीर का टूरिज्म है वो बूस्ट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास जो अभी देख लीजिए मैक्सिमम जो अभी हमारी जो ट्रेन यहाँ पे चली हुई है, अगर हम नॉर्थ कश्मीर से बात करें, जो बारामूला से ज़्यादा से ज़्यादा काजीगुंड तक जाते हैं या बानिहाल तक जाते हैं, लेकिन जिस बंदे को जम्मू जाना है वो भी ट्रेन को प्रेफर करता है। वो कहता है कम से कम यार मैं तो बानिहाल तक पहुँच जाऊँगा, वहाँ से लेकर मैं कोई सोमो टैक्सी वगैरह लेके जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो दैट मीन्स कि प्रेफरेंस ट्रेन को दिया जाता है। और ट्रेन का जब भी हम बात करते हैं तो लाखों हजारों टन माल ट्रेनों से ढोया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और ये यहाँ पे ट्रकों का अगर ऐसा नहीं है कि ट्रकों पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारी जो अवेलेबिलिटी है, जैसे रोड कनेक्टिविटी के कारण हमारे कई दिनों तक रोड बंद रहती है और हमारे यहाँ पे जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें किल्लत पैदा होती है। तो ट्रेन के माध्यम से जब ट्रेन यहाँ से पूरे इंडिया को कनेक्ट करेगी तो ये जो चीज़ें हैं तो ये होना बहुत ही हद तक कम होगा। कम क्या होगा बल्कि बंद ही होगा। कश्मीर में अगर हम जनरली बोलेंगे, the biggest industry what we have in Kashmir is as of now is tourism. Tourism is the place which is very well on place. हाँ, अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, अगर ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, टूरिज्म का इतना बढ़ाव हो जाएगा जिसमें मुझे लगता है हमारी अकल खुद परेशान हो जाएगी। तो आपके वसादत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाला हुकाम को कि जितना भी जल्दी हो सके रेल कनेक्टिविटी जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ वेरी वेल ऑन प्लेस, इट शुड बी वेरी वेल ऑन प्लेस एज सून एज पॉसिबल, सो दैट हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिले। जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर का सवाल है और जिस जगह हम अभी बैठे हैं, इस जगह का ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, सोपोर की जगह है। अगर आप देखेंगे मैं बारहा हर एक महफिल में हर एक जगह ये बोलता चला आ रहा हूं कि सोपोर जो है इट इज़ ए गेटवे टू द टूरिज्म। अगर आप देखेंगे यहाँ जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं जो रखाईगाम में बैठती हैं उसका भी जो गुजर है वो इसी सोपोर से जाता है, इसी संग्रामा से होता है। अगर हम चलते बने, हमारा एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, जो बदकिस्मती से अभी भी गवर्नमेंट शायद अभी जागी नहीं है उसको प्रिजर्व करने में। मुझे नहीं पता है वो प्रिजर्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगेन उसका भी गुजर यहीं से है। आज की डेट में ना आप देखें नॉर्थ कश्मीर में जो पुल बना है, जो रेलवे में बना है, जम्मू शहरा पे जम्मू और कश्मीर को जो जोड़ रहा है, सबसे वर्ल्ड से सबसे हाईएस्ट पुल बना है। हम ये एक गुजारिश करते हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन की ओर से भी, और जितने भी हमारे यहाँ पर ताजरात हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ये हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि जितने भी हमारे मसाइल हैं थोड़े इमीडिएटली इन पे एक्शन करके काम किया जाए। हम भी खुशहाल जिंदगी देखना चाहें, जैसे कि आज हम देखते हैं काफी चेंज आ गई हैं आजकल। तो इसी रेलवे को भी काफी चेंज आए, एजुकेशन में भी चेंज आए, हमारे बच्चे जो हैं काफी ऊंची पढ़ाई तालीम कर सके, जो भी हम भी आसमान पर छुए हमारी पढ़ाई के साथ। जो भी ऑफिसर्स इस वक्त रेलवे को देख रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूटी JNK, उनका अखलाकी फर्ज बनता है कि वो रेलवे स्टेशन पे एक बार अपने अफसरों को भेजे और ये देखे कि इन्होंने क्या हाल बनाया है उस रेलवे स्टेशन का, जिस रेलवे स्टेशन में हमें अब शर्म आती है उस रेल में भी जाने की। उन रेलों का क्या बात होगी। और जो विंटर में अब हार्श विंटर आने वाला है, हमें उम्मीद होगी कि हमारी जितनी भी रेलवे गाड़ियां होगी, जो हमारी रेलवे कोच होंगे, वो फुल्ली सेंट्रली हीटेड होगी, क्योंकि
तभी जब आपकी इन हार्श विंटर जो आने वाला है उसमें हम उन रेलों में से यहां से काजीकोट जा सकेंगे या काजीकोट से वापस बारामूला आ सकेंगे। हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको दिल्ली का भी पता नहीं दिल्ली कहाँ है, जम्मू को भी पता नहीं जम्मू कहाँ है, और बम्बे का तो नाम ही उन्होंने सुना होगा। लेकिन रेलवे के आने से, कनेक्ट होने से हमारा बच्चा पूरे हिंदुस्तान की जगह जगह का, शहर शहर का, कस्बे कस्बे का वाकिफ हो जाएगा, और उसकी नॉलेज इतनी बढ़ेगी कि वो दूसरों को क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपको ये पता है बम्बई शहर में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है, कर्नाटका में क्या होता है, ये वो बच्चा पूछेगा जिसको ये नाम ही पता नहीं थी पहले। इसलिए जहां तक रेलवे का सफर आसान हो गया है वहां तक एजुकेशन भी आसान हो जाएगी। इसमें हर बच्चे को अपनी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो इंशाल्लाह हम ये दुआ करेंगे कि हमारे ये जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, हमारे जो बाकी बिजनेसमैन हैं, इनको रेलवे का जो इस्तेमाल करना है वो अल्लाह ताला हमें आसान करके दे दे, और से रेलवे की कदर हम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को एक बात सोचना चाहिए कि इस रेलवे जो है हमें चाहिए ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर हम कितरदजी मुंडजी जैसी बात करेंगे, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसका भी गुजर यहीं से है। अगर हम बात करेंगे रफियाबाद से, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस अभी गवर्नमेंट ने दिए हैं, नॉमिनेट किए हैं गांव, उसका भी गुजर सोपोर से ही है। अगर हम बात करेंगे टंगडार टिटवाल की, उसका भी गुजर सोपोर से ही है। अगर हम बात करेंगे गुरेज की, उसका भी गुजर सोपोर से ही है। अगर हम बात करें मत्सल एलओसी की, उसका गुजर भी सोपोर से ही है। तो इसलिए मैं आपकी वसात से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आला गवर्नमेंट को कि सोपोर को गेटवे ऑफ टूरिज्म का दर्जा दिया जाए एज सून एज पॉसिबल। तो इसके चलते चलते मुझे लगता है मैं सलाम करता हूं सब लोगों को जो भी अपना कीमती वक्त निकाल के यहां आए हैं, यहां अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मुझे लगता है इतना ही हमसे हो सकता है। बाकी जो भी है, गवर्नमेंट इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। मैं नहीं ये बोलूंगा कि बेसिकली कुछ नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा यहां इस स्टेज पे कि हुआ है, मगर बहुत होने की जरूरत है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे टुगेदर एंड डेफिनेटली वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे टुगेदर। जब से एलजी हुकूमत का दौर चल रहा है अभी, तो क्या डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है वो किस रफ्तार से उन पे काम हो रहा है? क्या कुछ तब्दीली रोनमा वाक़ा हुई है? जब जो एलजी आई है, यूनिट टेरिटरी बनी है पूरा हमारा जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ी एक बात बता दूं, ये दिल से बताता हूं, ये किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं या किसी के ऊपर में बना बन के नहीं कर रहा हूं, जो ये करप्शन खत्म हो गई है। जो सिस्टम आप ऑनलाइन हुआ है ना, चाहे तहसील में देखो चाहे कहीं भी देखो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं अपनी। मैंने डोमिसाइल बनाए, आप यकीन मानना जितना गवर्नमेंट ने पैसा रखा था ना उसके चार्जेस वही देने पड़े और कुछ नहीं देने पड़े, आराम से घर में पहुंच गई हर चीज। जो अब ये सिस्टम बन रहा है ना एलजी गवर्नमेंट में, तो ठीक चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिमम जो रोड्स बन रही हैं, तकरीबन हर जगह पर अच्छी रोड्स बन रही हैं। सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, कनेक्टिविटी बन रही है। और हम गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई है जम्मू कश्मीर में, अगर इसको ये फ्री कर देना, ये हमारी जाती राय है, जितने भी सब बैठे हैं इनकी एक जाती राय है। जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्यों हालात को देखकर इनकी पढ़ाई फ्री करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फीसें इतनी हाई जा रही हैं तो उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप देख लो ना, जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के फीसों का इतना डिफरेंस है, कहने की बात ही नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन में, चाहे नॉन टेक्निकल एजुकेशन में, बच्चों की बात है, उनको थोड़ा जैसे बाकी जगह पे हो रहा है फ्री एजुकेशन है, यहाँ भी फ्री एजुकेशन करें। हम भी थोड़ा सांस ले लेना, हम भी तो इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, जब हर जगह पढ़ाई फ्री है तो हमें भी पढ़ाई फ्री करें। हमारे दिल्ली में इस वक्त देख ले, अब हम अगर मोदी जी की बात करें, हर जगह उन्होंने फ्री एजुकेशन रखी है, तो यहाँ भी कर दे फ्री एजुकेशन, हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ें। ये हम पर्सनल रिक्वेस्ट करें। बाकी सिस्टम अब जो डेवलपमेंट है वो ठीक चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा काम हो रहा है आज के दौर में। नाज़रीन, रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।